So here I come with next set of questions of MCQs for you. Let's practice these questions, and these questions again are from Unit 2, and particularly these questions are from auditing part. As we are doing this accounting part, so auditing के भी हम questions को अब cover करते हैं. Starting with the very first question, the main object of an audit of accounts of a joint stock company is. एक कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट क्यों किया जाता है? डायरेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स के लिए, फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए, या एरर एंड फ्रॉड्स दोनों को प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए, या फिर टू फाइंड आउट कि बैलेंस शीट और जो P&L अकाउंट बनाया गया है क्या उसको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द जो स्टैंडर्ड्स हैं कंपनीज एक्ट में दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया गया है, और क्या वो एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अफेयर्स को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी हेयर because major part of auditing is to find out the we can say whether they are properly in accordance to the companies act and even they are traced and drawn in a fair view. Next is the main objective of audit is. क्या main objective है auditing का? Expression of opinion, detection and prevention of fraud and errors. Both A and B depends on the type of audit. So it depends on the type of audit we are doing. उस particular audit का क्या objective है? So option D is correct. Then next, a sale of rupees 30,000 to A was entered as a sale to B. A को सेल किया गया था बट नाम वहां पर B का लिख दिया एक ही जगह. तो ये क्या है? एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन. सो इट्स कमीशन मीन्स एरर कराया गया है, कमिट हो चुका है, गलत नाम लिखा गया है, ओमिट नहीं हुआ है. So option B is correct. Then next, which of the following statements is not true? Let's read all the statements and then we will find out. Management fraud is difficult to detect than employee fraud. Yes, that's true. An internal control system reduces the possibility of occurrence of employee fraud and management fraud. इंटरनल कंट्रोल से एम्प्लॉय का फ्रॉड भी रुक जाता है और मैनेजमेंट का भी. ये ट्रू नहीं है. दिस इज नॉट ट्रू. ऑप्शन बी इज फॉल्स. नेक्स्ट, वाइल वाउचिंग जब हम करते हैं, सो हाउ विल द ऑडिटर इंश्योर दैट ऑल द क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन्स जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड की गई हैं? एग्जामिनिंग कट ऑफ पॉइंट्स, या मैचिंग द एंट्रीज इन सेल बुक्स अगेंस्ट द एन्यूमर्ड सेल्स इनवॉइस से चेक करना, ये करेक्ट है. काउंटिंग द नंबर ऑफ इनवॉइसेज एंड मैचिंग द नंबर विद एंट्रीज, ये भी सही है. सो बोथ, सॉरी it's not C, both A and B. We will go with option D. B भी correct है और A भी. Cut off points को भी check करना और errors को भी, entries को भी check करना. Then next question number 6 we have, auditing and accounting are concerned with which of the following financial statements? Auditing or accounting? Auditing uses theory of evidence to verify the financial information made available by accountancy, correct. Auditing lends credibility dimensions. Auditor should have a thorough knowledge of accounting concepts, that's true. So we will go with option D, all of the above. All of the above statements are correct. Next, question number 7, auditing begins where dash ends. Selling ends, accounting ends, inventory ends और business ends where accounting ends. जब अकाउंटिंग पूरी कर दी जाती है तब ऑडिटिंग से उसको चेक किया जाता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, द इंटरनल ऑडिटर्स, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, they need to possess the qualifications laid down in the companies act. Should be chartered accountant, should be chartered accountant or cost account. They should possess actually the qualification of need not possess the qualification laid down in companies act. जो qualifications दी गई हैं वो होना जरूरी नहीं है. So option में is correct, otherwise all should be there. Primary objective of an audit is to, क्या main objective है? Verify value the assets of company act, या verify liabilities and report, या verify and report on the share of affairs of business. business का जो state of affairs है, fair किया है या नहीं किया, उसको verify करना. So option C is correct. Then management audit is ordered by the, मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा. ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट के ऑर्डर कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. देन नेक्स्ट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. जो पार्टनरशिप फर्म है और जो उसका ऑडिटर होता है उसको कितनी रेम्यूनरेशन, कितनी सैलरी देनी है, ये कौन फिक्स करता है? पार्टनरशिप एक्ट करता है, कंपनीज एक्ट करती है, गवर्नमेंट करती है, नन ऑफ द अबव. दैट्स नन ऑफ द अबव, क्योंकि वो पार्टनर्स ही डिसाइड करते हैं.
Then an internal auditor is appointed by मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी. सो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा. ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. क्या क्या राइट्स हैं एक स्टैट्यूटरी ऑर्डर के, और सॉरी ऑडिटर के? रिसीविंग रिम्यूनरेशन, यस. अटेंडिंग द बोर्ड of directors meeting, yes. Attend the general meeting, yes. Visit the branch office. So all the options are available in your this option C. We will go with option C. Next is consider the following activities and correct sequence बताना है ऑडिटर के द्वारा एक्टिविटी फर्स्ट नंबर पे कौन सी की जाती है, देन कौन सी एंड देन कौन सी. सो पहले वैल्यूएशन की जाती है, फिर वेरिफिकेशन और फिर वाउचिंग की जाती है. सो 1 2 3 इज करेक्ट ऑर्डर. दिस इज गिवन इन ऑप्शन D. We will go with option D. 1 2 3. Next, a continuous audit is especially needed for. A continuous auditing क्यों ज़रूरी है? बार बार ऑडिटिंग करना क्यों ज़रूरी है? कौन सी बिजनेस के लिए ज़रूरी है? बैंकिंग बिजनेस के लिए continuous auditing. So we will go with option C. Then next is इंटरिम ऑडिट किसको बोला जाता है? कॉन्टिन्यूस एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स को, या इंटरमिटेंट? इंटरमिटेंट मीन्स इंटरवल के बाद, कुछ कुछ टाइम बाद, लाइक वी कैन से आफ्टर 3 months, क्वार्टरली, यू कैन से हाफ ईयरली. सो ऑप्शन बी इज हेयर. नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑडिट इम्प्लाइज. मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मतलब है? Audit undertaken on behalf of management, या evaluating the performance of various management process and functions. So this is correct, given in option B. Next is auditors of a company have to report to the. एक कंपनी के ऑडिटर्स को अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करवानी होती है, किसको बतानी होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, या शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग. सो दैट्स करेक्ट, ऑप्शन डी इज योर आंसर. देन व्हेन एन ऑडिटर डेलीगेट्स वर्क टू हिज असिस्टेंट्स. अब हर बार ऑडिटर तो काम नहीं करता, वो अपने साथ सब ऑडिटर रखता है. तो अगर वो उनको काम दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क परफॉर्म्ड बाय हिज असिस्टेंट्स, राइट? ही has to bear all the responsibility. We will go with option A. Then final audit किसे बोला जाता है? Final audit implies audit of accounts at the end of the year, क्योंकि एक ईयर का पूरा जो ऑडिट होता है वो फाइनल ऑडिट होता है. ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट मीन्स, जो इंटरनल ऑडिट होता है वो क्या होता है? ऑडिटिंग दैट इज अंडरटेकन बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू चेक फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज. इंटरनल, अंदर के अंदर जो किया जाता है. ऑप्शन सी. देन नेक्स्ट, द ऑडिटर इन जनरल इज एन. क्या होता है ऑडिटर इन जनरल? कंपनी का एक एम्प्लॉय ही हम उसको कहते हैं, कंपनी का एक एजेंट होता है, या शेयर होल्डर्स का एजेंट होता है, नन ऑफ द अबव. सो ही इज एक्चुअली द एजेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग जो है पर्टिकुलर कंपनी के, वो चेक कर रहा है. अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म. एक ऑडिटर का अभी जितने टर्म के लिए उसको अपॉइंट किया गया था वो टाइम पीरियड पूरा भी नहीं हुआ है, और उसकी एक्सपायरी से पहले अगर उसको हटा दें तो वो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सिर्फ शेयर होल्डर्स के द्वारा, अदरवाइज नो वन हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी विल होल्ड द ऑफिस. कितने टाइम के लिए फर्स्ट ऑडिटर को टाइम मीन्स वो ऑफिस होल्ड करने का टाइम दिया जाता है? 1 year के लिए, till the statutory meeting happens, or till the conclusion of first annual general meeting. So first AGM तक एक फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद वो चेंज हो सकता है. सो वी विल गो विद ऑप्शन सी. देन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25. हु इज क्वालिफाइड टू बी अ कंपनी ऑडिटर? एक कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए इनमें से क्या होना ज़रूरी है? सो ही मस्ट बी CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तभी आप ऑडिटर बन सकते हो. देन नेक्स्ट, फाइनेंशियल ऑडिटर सबमिट्स द रिपोर्ट टू द. एक फाइनेंशियल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? वेरी ट्रू, शेयर होल्डर्स को. We even did this question earlier before. The cost auditor submits the report to the. कॉस्ट ऑडिटर किसको सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट? शेयर होल्डर्स को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, BOD को, राइट? देन नेक्स्ट, डैश ऑडिट रेफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ अ कंपनीज परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान्ड गोल्स इन द एरियाज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो दैट्स वेरी इजी. दिस इज आवर सोशल
ऑडिट, सोशल ऑडिट इज द फाइनल आंसर ऑफ सोशल ऑडिट का मतलब है कि एक कंपनी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी पूरी करी है. देन द वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज, बैलेंस ऑफ रिजर्व, प्रोविजंस, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न किया है, लॉस अर्न किया है, ये सब किस का पार्ट है? बैलेंस शीट ऑडिट, कॉन्टिन्यूस ऑडिट, इंटरिम ऑडिट या पार्शियल ऑडिट. सो दिस इज बैलेंस शीट ऑडिट, क्योंकि ये सब टर्म्स बैलेंस शीट में दिखती हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, रिजर्व्स, प्रोविजन, राइट. देन इंटरनल ऑडिट किस लिए हेल्पफुल होता है? इट इज हेल्पफुल फॉर, ये हेल्पफुल इन डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स, डिटेक्ट करने में कि कहीं पर क्या फ्रॉड या कोई एरर तो नहीं हो रहा. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर? बाकी सारे फंक्शन है ऑडिटर के, इनमें से ये इसका फंक्शन नहीं है. चेकिंग एरर एंड फ्रॉड, देखिए ये तो फंक्शन होता ही है ऑडिटर का. करेक्टिंग दोज एरर एंड फ्रॉड्स, ये भी होता है. वाउचिंग करना, ये भी है. प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, नो दिस इज नॉट द वर्क ऑफ ऑडिटर, ये अकाउंटेंट्स का काम है, ये ऑडिटर का काम नहीं है. देन वेरिफिकेशन रेफर्स टू, जो वेरिफिकेशन हमने किया था एक पार्ट वेरिफिकेशन, उसका क्या मतलब है? एग्जामिनेशन ऑफ जनरल एंड लेजर, ये एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर रिलेटेड टू द एसेट्स, ये एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स की वैल्यू बुक्स में लिखी गई है और उनकी फिजिकली क्या वैल्यू है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं नहीं, ये सब एग्जामिन करना, ये एक वेरिफिकेशन का काम है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरिफिकेशन, एसेट्स की जो वेरिफिकेशन की जाती है ये क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? फिजिकल वेरीफाई करना, यस. वैल्यू को चेक करना, यस. एग्जामिन करना उनको, यस. ऑल ऑफ द अबव. सो वी विल गो विद ऑप्शन डी हियर. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? We will read all the statements and then we will find which one is correct. Valuation is a part of verification. That's true. Verification is the part of valuation. No. So first only we will go with one. Option A. Then next we have 35th question. An auditor conducts surprise check करता है एक दिन, the day जिस दिन सैलरीज या वेजेस दे रहे हैं, देनी होती है एम्प्लॉयज को, उस दिन वो चेकिंग कर रहा है. तो यहाँ पर ऑडिटर का फर्स्ट क्या रहेगा प्रोसेस, या उसका फर्स्ट प्रोसीजर का क्या मेन पर्पस रहेगा? ये चेक करना कि कोई गोस्ट वर्कर तो नहीं है, ये चेक करना कि कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉय है या नहीं, टेस्ट प्रोसीजर चेक करना कि उनको कैसे पेमेंट मिल रही है, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है. सो वी विल सी टेस्ट प्रोसीजर्स क्या किए जाते हैं, पे चेक्स कैसे उनको दिए जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर अमाउंट ही हमें देखनी है कि वो बुक्स में लिखी गई है नहीं. देन व्हेन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिलाई ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के काम पर रिलाई करता है, मीन्स उसके ही काम पर विश्वास जता रहा है, तो इसका मतलब क्या है? दैट ही इज एग्जामिनिंग द स्कोप, he is examining the system of supervising, examining the adequacy, all of the above. Next, which of the following statement here is not true? We will read all the statements and then we will find. Valuation of assets is the responsibility of management. Yes. The auditor can rely on certificate issued by authorized valuationer as the valuation जिसने करी है, अगर उसके पास particular certificate है तो ऑडिटर को उसके काम पर रिलाई करना होगा. ट्रू. ऑडिटर should value the assets as per generally accepted accounting principles. No, it's not true. We will not go with option C. The liability of the auditor can be, अगर ऑडिटर की कोई लाइबिलिटी है, उस पर कोई ड्यूटी है, उस पर कोई वी कैन से फाइन लगता है, तो वो क्या है? ओनली सिविल नेचर का होता है, क्रिमिनल नेचर का होता है, सिविल भी हो सकता है क्रिमिनल या सिविल क्रिमिनल. सो आइदर सिविल और विल गो विद ऑप्शन सी और डी, बोथ आर ट्रू. अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स, ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग दिया गया है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, राइट. द नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वॉज सेटअप बाय, किसने इस बोर्ड की स्थापना करी थी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की. सो दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI. Choose the correct statement in reference to the accounting standards. So let's see all the statements and then we will choose the best one. Accounting standards codify the generally accepted accounting principles. True. Accounting standards lay down the norms of accounting principles. True. The main purpose of accounting standard is to provide information to the user on the basis of the accounts they have been prepared. True, all of the above. So all of the above is correct here. Option D. I hope students you covered all these questions along with me. You can make your own notes, start learning, start practicing. Till then, have a nice day. Thank you.